Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well in your studies as the session has started, and to help you out in this time of online class, I'm here with my video for the class 7th, and this very video is related to the chapter number 2 of the literature book titled Birdie Will You Pet. Dear learners, this is a poem written by W. Allingham, and in this very video I am going to discuss all the stanzas and will be sharing with you their explanation. So do watch the video till end of it and feel benefited. And if you are new to the channel, then do subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notification of all my new videos as soon as they get uploaded in this channel. Okay, so on your screen you have now the chapter number 2 titled Birdie Will You Pet. Dear learners, before I start the explanation, I want to share with you just a summary of this very poem in just 2 to 3 lines. What the poem is about. See, Birdie Will You Pet? It is a poem in which a child is there. As you can see in the picture, a girl is there and she is tempting a bird to be her pet. ये जो पोएम है आपकी बर्थडे विल यू पेट, इस कविता में एक बच्ची है, आप पिक्चर में देखिए, और ये छोटी सी जो बच्ची है चिड़िया को जो है कई प्रकार के प्रलोभन देती है, कई प्रकार की लालच देती है ताकि वो उसकी पेट बन जाए. लेकिन द चाइल्ड ऑफर्स वेरियस कंफर्ट्स टू द बर्ड, और बदले में जो कंफर्ट्स देता है वो बच्चा बर्ड को, उसके बदले में बर्ड कहती है कि आई डोंट वांट दोज comfortable things, I just want my freedom. Means the bird rejects all the comforts being offered by the child. And this is a conversation between a child and a bird. Okay, there is a pre-reading task given before we start the poem, and in the pre-reading task there is an activity which you can do. If asked to choose between money and freedom, what would you choose and why? मान लीजिए आपको पैसे और आज़ादी में, फ्रीडम में कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, तो आप क्या चूज़ करेंगे, क्यों करेंगे? एक और एक्टिविटी आपको, कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट कम विद फ्रीडम एंड कैन नॉट बी बॉट विद मनी. आपको उन चीज़ों की एक बारे में सोचना है जो फ्रीडम के साथ आपको मिलती हैं लेकिन पैसे से उनको हम नहीं खरीद सकते. एंड डिस्कस विद दोज थिंग्स विद योर पार्टनर एंड प्रिपेयर अ list. So this was an activity, a pre-reading task which you have to do yourself. It is not related to your exams, and such type of activity is not going to come in your exam. So now let us start the poem. Now read the poem given below, where a child is tempting a bird to be her pet. And as I told you earlier, there is a conversation between the child and the bird. So the first 4 sentences of the stanzas, they are from the child. A child speaks. What the child says: Birdie, will you pet? Summer time is far away yet. जो बच्ची है, जो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये इस बर्ड को जो है कहती, क्या तुम मेरी पेट बनोगी, क्या तुम मेरी पालतू बनोगी? समर टाइम इज़ फार अवे. गर्मियाँ अभी बहुत दूर है, गर्मियों का समय अभी बहुत दूर है. आगे क्या कहता है बच्चा? यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट्स एंड अ वेलवेट बेड. गर्मियाँ दूर है, इतनी सर्दियाँ हैं, तो कहती है वो बच्ची कि तुम्हें सिल्क की जो है क्विल्ट मिलेगी. क्विल्ट क्या होता है? इट इज़ अ कवर फॉर अ बेड दैट हैज़ अ थिक वार्म मटीरियल, जिसको हम हिंदी में रज़ाई कहते हैं. तो बच्चा उसको लालच देता है कि तुम्हें सिल्क की जो रज़ाई मिलेगी और एक वेलवेट का, मखमल का बिस्तर मिलेगा, बेड मिलेगा. एंड अ पिल्लो ऑफ सैटिन फॉर योर हेड, और तुम्हारे हेड के लिए एक साटिन का भी कपड़ा होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, उसका तुम्हें सिरहाना मिलेगा, पिल्लो मिलेगा. ठीक है. अब ये सारे कंफर्ट ये जो बच्चा ऑफर करता है, बच्चे बर्ड को देता है. तो ये सुनने के बाद बर्ड क्या कहती है? बर्ड कहती है, आई वुड रादर स्लीप इन द आईवी वॉल. बर्ड कहती है कि मैं तो आईवी वॉल में सोना पसंद करूँगी. अब आईवी वॉल क्या होता है? वॉल यू ऑल नो,
वॉल का मतलब दीवार होता है, और आईवी मीन्स आईवी एक तरह का क्लाइंबिंग प्लांट होता है दैट हैज़ डार्क लीव्स विथ 3 और 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एक बेल होती है जो दीवार के सारे चढ़ती है, जिसकी डार्क लीव्स होती है, 3 से 4 उसमें पॉइंट्स होते हैं। चलो फिर आगे बर्ड कहता है नो रेन कम्स दो आई हियर इन फॉल, और जहाँ पे मैं रहती हूँ उस आईवी वॉल में, वहाँ पे कोई बारिश नहीं आती, हालांकि मैं उसको गिरते हुए सुनती हूँ। और आगे क्या कहता है बर्ड, द सन पीप्स गे एट डॉन ऑफ डे, जहाँ मैं आईवी वॉल में रहती हूँ वहाँ पे सूरज जो है सुबह सुबह झांकता है, पीप्स मतलब लुक्स, गे मीन्स हैप्पी, एट डॉन ऑफ द डे, सुबह का जो भोर काल होता है, प्रातः काल होता है, उस समय सूरज सबसे पहले वहाँ पे उसकी किरणें पड़ती हैं। ओके, और जब किरणें पड़ती हैं तो आई सिंग एंड विंग अवे अवे, आपने देखा होगा सुबह सुबह जो 4:30 बजे 5 बजे दिन निकलता है तो उसमें चिड़ी बर्ड्स की जो चहचहाट सुनाई देती है, तो ये बर्ड भी क्या कहती है कि जब सूरज निकलता है उसकी किरणें पड़ती हैं तो आई सिंग मैं गाती हूँ, एंड विंग अवे अवे, और अपने पंखों को फड़ाते हुए मैं इधर उधर मूव करती हूँ, उड़ती हूँ। ओके, चलो ये हो गया हमारा जो कन्वर्सेशन था चाइल्ड और बर्ड के बीच में। आगे देखते इस पोएम में क्या होता है, आगे देखिए आप नेक्स्ट पेज पे आपके। फिर बर्ड आगे क्या कहता है, ओ बर्डी विल यू पेट, बर्डी प्यार से बर्ड को बर्डी बर्डी कहता क्या तुम मेरी पेट बनोगी। और फिर क्या लालच देता है चाइल्ड, डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट, मैं तुम्हें डायमंड के मतलब डायमंड एक वैल्यूएबल स्टोन होता है, मैं तुम्हें एम्बर, एम्बर भी एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जेट, जेट अगेन एक वैल्यूएबल स्टोन है। तो बर्ड बच्चा कहता है कि बर्डी मैं तुम्हें डायमंड स्टोन्स का, एम्बर का और जेट का जो है एक स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस, इन सबको मैं एक धागे में पिरो दूँगी, एक नेकलेस बनाऊँगी जो बहुत ही सुंदर होगा और बहुत ही प्यारा होगा, फेयर एंड फाइन, टू प्लीज़ दिस प्रेटी बर्ड ऑफ माइंड। तो बच्चा कहता है कि बर्डी तुम्हारे जो है ये बहुत तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत खुशी होगी इस बर्ड को, इस नेकलेस को पहनने के बाद। ओके, अब आगे बर्ड क्या कहता है, बर्ड कहता है ओह थैंक्स फॉर डायमंड्स, वो कहता है तुम्हारे डायमंड्स के लिए शुक्रिया, एंड थैंक्स फॉर जेट, और तुम्हारे जेट के लिए भी शुक्रिया, बट हेयर समथिंग डेंटियर येट, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे पास कुछ सॉफ्ट है, डेंटियर का मतलब होता है स्वीटर, उससे भी प्यारा कुछ मेरे पास है, और वो क्या है, अ फेदर नेकलेस, फेदर आपको पता है पंख जो होते हैं, पंखों का एक नेकलेस है, राउंड एंड राउंड जो चारों तरफ है, दैट आई वुड सेल फॉर 1,000 पाउंड, जो मेरे नेक पे चारों तरफ जो फेदर्स का जो नेकलेस है वो मेरे पास है, वो ज़्यादा सॉफ्ट है, जिससे कि मैं 1,000 पाउंड से भी सेल नहीं करूँगी, मतलब उसके बदले में मैं कीमती से कीमती जो है नेकलेस भी नहीं पहनूँगी। चलो आगे देखते हैं फिर आगे बच्चा फिर उसको लालच देता है बर्ड को, और कहता है ओ बर्डी वोंट यू पेट, क्या तुम मेरी पेट नहीं बनोगी, वी विल बाय यू अ डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट, डिश होता है कंटेनर या बर्तन, तो बच्चा कहता है कि बर्डी क्या तुम मेरी पेट नहीं बनोगी, मैं तुम्हारे लिए एक डिश खरीदूंगी ऑफ सिल्वर फ्रेट, सिल्वर फ्रेट का मतलब होता है चांदी से के धागे से डेकोरेटेड, डेकोरेटेड विद द सिल्वर थ्रेड, दैट इज सिल्वर फ्रेट, अ गोल्डन कप, फिर वो कहती है मैं तुम्हें एक सोने का कप दूंगी, एक आइवरी सीट दूंगी, आइवरी हमें पता है हाथी दांत होते हैं, हाथी के दांत से बनी हुई एक सीट मैं तुम्हें दूंगी जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होती है, एंड कारपेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट, और तुम्हारे पैरों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए बड़ा मखमल कारपेट जो सॉफ्ट जो तुम्हें दूंगी। फिर आगे बर्ड कहता है कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड, क्या उस गोल्ड के कप से बहता हुआ पानी पिया जा सकता है, कैन द सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड, क्या उस चांदी के बर्तन में आप फॉरेस्ट को जो है होल्ड कर सकते हो, क्या मतलब जो जंगल में जो मुझे खाने का जो मज़ा आएगा, हाँ क्या वो सिल्वर के डिश में आएगा। अ रॉकिंग ट्विग, एक रॉकिंग मतलब शेकिंग हिलने वाली डाली जो होती है, ट्विग होता है डाली स्मॉल ब्रांच, इज़ द फाइनेस्ट चेयर, वो मेरे लिए सबसे अच्छी चेयर है, एंड द सॉफ्टेस्ट पाथ लाई थ्रू द एयर, और हवा में जब मैं उड़ती हूँ वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पाथ है, रास्ता है। और ये कहने के बाद आगे वर्ड कहते हैं गुड बाय टू माई लेडी फेयर, कि माई लेडी फेयर आई से टू यू गुड बाय, आई डोंट वॉन्ट ऑल योर वेरियस कम्फर्ट्स, आई वॉन्ट माई फ्रीडम। और ये कह के फिर वर्ड जो है
उड़ जाती है। ओके, चलिए, तो इसके साथ ही हमारी जो पोएम जो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको पोएम समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो डू लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, एंड be in touch with the channel. I want you all back in my next video. Till then, keep learning and stay safe.